KU always has been such a joy for me. Maybe there's this void somewhere that I couldn't go to the medical school. So every time I come here, I just kind of want to pretend that I'm one of you rather than being me myself. So a big rounded applause for all of you. It's not easy to be a doctor, and it's even harder to live with doctors, let me tell you. So I have a family of doctors, mother, father, brothers, everybody. Koi diabetologist, koi oncologist, koi, and even though I was the most passionate, but God has something else written for you. And I couldn't go to medical school. I got married very early because of whatever reasons. However, today standing here, every time coming here, I just feel that whatever you ask for from God, God gives you, if not in this way, then another way. So I'm very, very grateful to Allah Ta'ala for whatever plans Allah Subhanahu wa Ta'ala had for me. I couldn't have had a better plan, Alhamdulillah. So I don't know what to say. All these jargons and terminologies that I've heard in this past 1.5 hours, they were just reminding me of all my youth, when my dad, my mother, and my eldest brother, who's an oncologist, they would speak about a patient to each other, and I would just gaze from one person to another. And all these words were just like, but in those days, when I was 14, these words used to intimidate me because they used to sound highly professional, and I would feel one day, I'll be in medical school with all of you, and I will understand everything you're saying. And I remember कि रात के आधे पहर में मैं छुप के मेडिकल की बुक्स उठाकर और नॉवेल्स की तरह पढ़ती थी अपने भाई की, who was in Dow. और मुझे इतना अच्छा लगता था ह्यूमन एनाटमी पढ़ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना, मेंटल हेल्थ. दिस वाज लाइक ever since I was 13, I remember. And so वही बात है कि fast forward, you become a mom, and I was a mother at 19, and I feel today, not today, when I realized this maybe 20 years ago, that practically doing things teaches you, it's another way that you learn. First, you practically do stuff, and then you learn the science. And when you learn the science first and then practically do it, it's something else. So maybe Allah subhanahu wa ta'ala wanted me to just go and jump into the fire maybe, or put my hands in the dirt first, and then maybe later on go and learn the science. So that's what happened to me. After 15 years of marriage, that's when I went back into studies. I'll tell you a small story, which was, today I laugh at it because ज़ाहिर है उस वक्त तो बात समझ नहीं आई थी, थोड़ा गुस्सा भी आया था. When 15 years down the line, I went back to 2 medical schools in my city, without naming the schools. पहली मेडिकल स्कूल में मैं एंटर हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे दाखिला लेना है. तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक पहले देखा और कहा, बीबी बहुत जल्दी ख्याल आया. Being the stubborn person that I was, I just looked at him back and I turned back. I said, I'm not going to even talk about this. Went to another college, and you wouldn't believe what they said. They said, जी बीबी बैठिए, आपकी क्या परसेंटेज आई थी इंटर में? मैंने कहा 89. कितने साल हो गए? मैंने कहा 15 साल. तो हर साल की 2% कम कर दें. क्या हो गई आपकी परसेंटेज? मैंने कहा C. कहते हैं तो आपका दाखिला यहाँ नहीं हो सकता. I think they were just mocking me maybe. ऐसा तो कोई पॉलिसी होती ही नहीं है. However, that pushed me into looking into other countries for anything closest to medicine that I could do. And that took me towards taking up nutrition and fitness. And मैं अभी डॉक्टर फाइजा को बता रही थी कि 11 साल हो गए हैं, I've shut that down, I'm not doing any more practice because मेरा किरण का काम इतना बढ़ गया कि I used to run from home to, to my work and then to Kiran. And then one fine day I had to decide what is more important for me. And looking back at my life, कुछ चीज़ें जो आप सोचते हैं आपको करना है और बिल्कुल उसके उस वक्त लग रहा होता है कि वो नहीं हो रही और उसके ऑपोजिट हो रहा है, मगर वो ऑपोजिट नहीं हो रहा था. It was actually taking me closer to my purpose of life, and that was to be able to make a difference
that was to be able to hold a child who is unseen, who's unheard, who feels invisible, who feels hurt, because there's a part of every child who's ever felt alone that lives inside me. यहाँ पे ही डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि डॉक्टर सलीम कह रहे थे कि जब कोई चीज़ पर्सनलाइज्ड हो जाती है, when it's related to you yourself, then it takes another height. So मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मुझे खुदा जाने क्यों सितारा इम्तियाज़ दिया उन्होंने. जब उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उनसे कहा आपको कोई गलत फहमी हुई है शायद, तो आप किसी और को शायद कॉल कर रहे थे. एंड देन दे रेड आउट माई होल लाइफ ऑन फोन. उनके पास वो इन्फॉर्मेशन थी जो इन्फॉर्मेशन मैंने कभी कहीं लिखी भी नहीं है. मैं हैरान हो गई, मैंने कहा आपने कितनी रिसर्च की हुई है भाई. देन आई रियलाइज्ड कि आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं कहीं कोई छुप के देख रहा होता है आपको, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है जो छुप के आपको देख रहा है वो छोटा सा बच्चा है जो ऐसे ऐसे करके देख रहा होता है और कहीं इंस्पायर हो रहा होता है. और उस वक्त आप रियलाइज़ करते हैं कि मेरा हर कदम शायद मुझे बहुत सोच के और बहुत ख्याल से उठाना है कि कहीं कोने में कोई शख्स शायद आपको नोट कर रहा है और रियलाइज़ कर रहा है और सोच रहा है और एस्पायर कर रहा है. तो इट वॉज अ realization for me at that time too. Behral, I don't know why I'm feeling so emotional right now, because medical schools, even though they intimidate me a little, because the fear is coming from childhood, but not the fear, but you know, the loss, the void is still there. There's this hole in my heart that I couldn't go to a medical school, but it's that hole from where I work. So today I don't want to heal that hole. It doesn't pain anymore, but it's there. And if I would want to heal it, I think I wouldn't be able to empathize with all those people who could not achieve their literal dream. जो वो सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, वो literally तो achieve नहीं होता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला just takes you around and around and around, and you actually reach exactly where you wanted to be. और वो जर्नी जो होती है ना, फ्लाइट से चित्राल जाना एक अलग चीज़ है और रोड से चित्राल जाना अलग चीज़ है. तो मुझे लगता है अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे रोड मैप ही दिया था कि बस हर चीज़ तुमने वहाँ पहुँचना तो है, लेकिन पहले एक्सपीरियंस करो. सो आई एम सो हैप्पी to read and to know that you're giving this importance, this value, and this generosity, I should say, to people who are working in the field. वरना आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम जैसे लोगों को ना भी देखें तो क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन टू मेक दिस ब्रिज कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो वहाँ हैं अंदर काम कर रहे हैं, हमें मिलके करना है काम. हमें आपकी एकेडेमिया की ज़रूरत है, हमें आपकी रिसर्च की ज़रूरत है, हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस की ज़रूरत है, और उन सब लोगों को ज़रूरत है जिनको हम पढ़ाते हैं या जिनके साथ हम काम करते हैं वहाँ. और शायद आपको हमारी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, हमारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है. आई थिंक कि दिस कैन ओनली बी अचीव्ड इफ़ वी बोथ कम टुगेदर. सो थैंक यू डॉक्टर फ़ायज़ा एंड whoever, I mean all of you who've thought about this bridging this gap. It is so beautiful. अभी मैं डॉक्टर फ़ायज़ा को यही कह रही थी कि मेरा दिल चाहता है आज भी मुझे कोई कहे कि मेडिकल स्कूल में दाखिला ले लो, मैं आज भी ले लूँगी, और चाहे मैं उसको मुकम्मल कर सकूँ या नहीं. आई एम 57 years old, आई डोंट केयर, and I would just do it because every day of my life is a learning. So it's been a beautiful, beautiful journey, mashallah. रिसर्च की जहाँ तक बात है, मैंने रिसर्च को हमेशा इस तरह देखा, मैं नहीं जानती, आप मुझे बताइए कि रिसर्च के एकेडेमिक डेफिनेशन क्या है. मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, रिसर्च का मतलब है खोल के पढ़ना, मालूमात हासिल करना. वो जो कुरान ने कहा कि गौर व फिक्र करो, वो जो कुरान ने कहा कि ढूंढो, मैं समझती हूँ वही रिसर्च है. वो अलग बात है कि फिर उसको डॉक्यूमेंट करना, उसमें से एक मतलब निकालना, उसका कंक्लूजन निकालना, फिर उससे कुछ इन्वेंट करना, इनोवेट करना, ताकि हज़ारों का फ़ायदा हो. ऑब्वियसली वो आपके जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग करते हैं, तो आपकी बहुत ज़रूरत है, आप बहुत कीमती हैं. लेकिन रिसर्च आपको ज़िंदगी में हर वक्त
खुद ब खुद होती चली जाती है। मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। मैं लिख रही थी, उस वक्त सोच रही थी कि मैं आपको क्या ऐसी बात बताऊं कि जो मैं कह सकूं कि शायद मेरी रिसर्च का हिस्सा है। किरण, मैंने लियारी को ढूंढा नहीं था, न मैंने सोचा था। शायद आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली चली गई उस पर कि लियारी से शुरुआत हुई थी किरण की। और वो ऐसे हुआ था कि लियारी की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची 8 माह की, उसके साथ फिज़िकल अब्यूज़ का केस था। और वो बहुत हमारी जानने वाली क्लोज़, मेरे घर में जो मेरे मेरे साथ जो हेल्पर्स हैं उन्हीं की फैमिली की थी। उसके फादर ने उस बच्ची को 8 माह की उम्र में उठा के दीवार पे फेंक दिया था। सो एक बच्चे को आप थोड़ी देर तसव्वुर करेंगे कि उठा के बस ऐसे एक बॉल की तरह फेंक दे। तो वो उस ज़माने में मैं जिन्ना हॉस्पिटल में वॉलंटियर करती थी, बर्न्स वार्ड में, जस्ट फॉर माई पीस ऑफ माइंड। तो माई ब्रदर वॉज डूइंग हिज हाउस जॉब देयर इन जिन्ना एट दैट टाइम। So she came, that mother, she brought the child to my house rather than going straight to a hospital. I don't know why, but she just reached my house and I thought she had a rag doll in her arms. It was like I felt the baby was dead. Or blue, उसके lips हुए हुए थे. Being a fitness professional, I knew how to do the CPR. Or I did whatever I could. She revived, she coughed, she vomited. एंड देन आई रैन टू जिन्ना हॉस्पिटल। उस पूरे दौरान उसकी जो चोटें आई थी, नज़र आ रही थी, कुछ नहीं नज़र आ रही थी। क्लाविकल टूट गया था, आई वॉज ऑल ब्लैक। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि ये जो इसके साथ अब्यूज़ हुआ है ये कैसे मैनिफेस्ट करेगा इन एडल्टहुड। इस बच्ची को शायद याद भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, अगर अगर कि वो औरत इस रिश्ते से निकल जाए या कुछ बेहतर हो जाए। कंटिन्यू रहा तो ऑब्वियसली जितनी दफ़ा अब्यूज़ होता है, सब जानते हैं आपके, उतना उसका घाव ज़्यादा लंबा होता है और उसको प्रोसेस करने में उतनी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन आई वाज जस्ट वंडरिंग कि this will all stay in the back of her memory that she will never be able to touch, but it will have effects on her personality. She might have a difficulty having relationships in life, she might have a fear of men, we don't know. And that is what took me deeper into understanding the impact of trauma on children. एंड थोड़ा सा क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज इस वजह से भी थी कि मेरा अपना जो काम था, आई वॉज अ डाइटिशियन एंड अ फिटनेस प्रोफेशनल, तो आई यूज़ टू लर्न अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो मेरे पास टीनेजर्स आते थे, तो मैं उनको जब अंडरस्टैंड करती थी तो पीछे लेयर्स ऑफ ट्रॉमा निकलते थे। तो वो एजुकेशन थोड़ी सी हमारी तालीम में भी थी। तो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, मैंने जब मालूम किया तो पता चला कि ये कई बार उसके साथ उस शख्स ने किया और उसके बाद भी 3 और दफ़ा किया। दैट इज़ व्हेन आई हैड टू इंटरवीन एंड आस्क द लेडी कि तुम इसके साथ रहना चाहती हो कि नहीं। और मेरा एक ही सवाल था उसकी माँ से कि मैंने उसको बिठाया अपने पास एंड आई टोल्ड हर कि मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ, एक सवाल का जवाब दो। शी सैट डाउन एंड आई सेड, तुम उस पर भरोसा करती हो, तुम्हें उस पर भरोसा है। शी वॉज लाइक क्वाइट फॉर लाइक मे बी 5 to 10 seconds एंड शी सेड, तो मैंने कहा ये रिश्ता फिर कैसे चलेगा आगे भरोसे के बगैर। दैट इज़ व्हेन शी सेड, देन शी स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट ऑल हर फियर्स ऑफ लीविंग हिम, कि मैं अकेली हो जाऊंगी, वो जो होता है सबको। एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँ एंड इफ आई एम देयर टू हेल्प यू और टू केयर फॉर यू और टू गाइड यू, वुड यू बी एबल टू टेक दिस स्टेप। सो फॉर 2 years, 2004 से 2006 तक, इट वॉज जस्ट 1 mother and 1 child। वो 8 माह की बच्ची और वो उसकी माँ, जो वो मेरे लिए एक आज मैं उसको कह सकती हूँ कि वो एक पायलट था किरण का, या मैं कह सकती हूँ कि वो एक केस स्टडी थी, या लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त इट वाज जस्ट लाइक समबडी हु नीडेड माय हेल्प। इट वाज जस्ट केयर दैट आई काइंड ऑफ ट्राइड टू गिव हर, नथिंग एल्स, जस्ट केयर। और ये लफ्ज़ जो केयर है, ये इतना छोटा लगता है लोगों को ये लफ्ज़, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है ये लफ्ज़ कि ये लफ्ज़ उन सारे माइक्रोकॉज़म्स से मिसिंग है जहाँ बच्चे ड्वेल करते हैं। ऑल द माइक्रोकॉज़म्स, नेम इट स्कूल्स, नेम इट क्लिनिक्स, ट्रीटिंग अ चाइल्ड, द डॉक्टर डजंट हैव केयर। मैंने तो देखा है ये खुद, दे सो रूड टू द किड्स।
एंड गो टू मदरसास जहाँ बच्चे हैं, जो एक चीज़ मिसिंग है वो है केयर। और इस केयर के ऊपर कोई किसी ने लिखा नहीं, कभी किसी ने बात नहीं की कि अच्छा आपका करिकुलम क्या है, आप कैम्ब्रिज फॉलो करती हैं, आप नहीं मैं केयर मॉडल फॉलो करती हूँ। हाँ, ये क्या होता है? केयर तो हम सब करते हैं एक दूसरे की, आई एम सॉरी नहीं करते। सो केयर के ऊपर जितना हम बात करें मेरे ख्याल में वो कम है। एंड आई थिंक कि आज ये सेमिनार जो यहाँ हुआ है, इट इज़ ऑल बिकॉज यू ऑल केयर. If you wouldn't have cared, you wouldn't have been here. So thank you so much for caring. This is all I can say to all of you for being here. And this little emotion, which is so huge, कि फिनलैंड की स्टडीज़ जिसको इतना फेम मिला कि क्या स्टडीज़ हैं, वो कहते हैं ECEC, Early Childhood Education and Care. They've added the C and they're saying this is the C that stands for care. And that makes the Finland education the best education in the world. So, and then care ka, jab when you think and you realize, okay, हाँ वाकई care is very important. Then what is the source, the biggest source of this world that defines care? अगर इसको हम सोचें, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि वो कौन सा सोर्स है जो केयर की महराज है, जहाँ से हम कहते हैं यार केयर कौन है वो और वो क्या है? आपका क्या ख्याल है? यस, ममता. मदर भी नहीं, ममता. बिकॉज यू डोंट हैव टू बी अ मदर टू हैव ममता. मैंने 6 साल की बच्चियों को अपने 1 साल के भाई को उठाते हुए ममता, मैंने 8 साल के लड़के को अपनी छोटी बहन को ऐसे रॉक करते हुए देखा है, गाँव में आप जाएं संभाल रहे हो, दैट्स ममता. बिल्ली के बच्चे को उठा के प्यार कर रहे हैं, दैट्स ममता. कभी कभार तो मैंने बीवियों को हस्बैंड्स के ऊपर भी ममता निछावर करते हुए देखा है. तो अगर वो दैट इज द सोर्स और द वेल और द मेराज ऑफ केयर, देन व्हाई इज द मदर, the name mother or the person mother or the ideology motherhood out of the schooling systems of our country? They're not part of the curriculum, they're not part of the schooling system at all. And that is what gave rise to Kiran. That Kiran will not be just yet another school where children come to learn literacy. No, we're not going to take any child until and unless the mother is part of the schooling system. She is a student with the child. So what do we teach the mothers? We just teach them self-esteem. We teach them, or we teach me word saying, we facilitate them to realize how important they are and what an important job they're doing. And they should like every day get up and say, well done, you know, I cared for this person, I cared for this person. जब वो ये रियलाइज़ करने लगती हैं, खुद को शाबाशी देने लगती हैं, जब रियलाइज़ करने लगती हैं, एहसास होने लगता है, that's when we ask them, do you care for yourself? And that is when they realize कि हाँ अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है. So मैं एक और वाक़या छोटा सा आपको सुनाऊंगी. देर तो नहीं हो रही आपको? हाय, हाँ, how much time do I have? Can I just say one more वाक़या that actually became a research topic for me? बहुत मुश्किल चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ. शायद मुझे जितना मुश्किल होता है इसको बयान करना, तकलीफ़ होती है, हो सकता है आपको भी तकलीफ़ हो. जब मैं लियारी एंटर मैंने किया तो मैंने नोटिस करना शुरू किया कि सारे जो जानवर हैं लियारी के, स्ट्रीट डॉग्स एंड स्ट्रीट कैट्स, वो सब ज़ख्मी हैं. वो किसी की दुम नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी की टांग लड़खड़ा रही है, किसी की आँख ज़ख्मी है. सो आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ दैट आई हैव टू फाइंड आउट दैट आर द डॉग्स फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स और इज़ इट गॉड फॉरबिड अ ह्यूमन. द मोमेंट आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट, माई हार्ट यूज्ड टू गिव अ लीप कि अल्लाह करे इंसान ना हो. And then I caught them red-handed. 6 to 7-year-old boys. Human bhi nahi. They're little humans. So, and I saw them playing with a dog. Stick in the hand, patthar haath mein, usko maare, udhar maare, peral. I just kept watching from a distance. This was on the streets of Liari. I waited. The dog ran away. I sat down on the footpath and I called the boys to me. There were 4 boys. 8 साल, 7 साल, इस तरह की उम्र थी. ऐसा आ जाओ मेरे साथ बैठो, आई वांट टू टॉक टू यू. और वो फ्रेंडली होते हैं, बैठ जाते हैं आपके साथ. मैं कहा आप लोग क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा हम खेल रहे थे. खेल इज़ अ साइंस. खेल थेरेपी, प्ले थेरेपी को पढ़ने के लिए लोग सालों लगाते हैं,
प्ले थेरेपिस्ट बनने के लिए, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है बच्चे की ज़िंदगी में, बिकॉज दैट कंडीशंस अ चाइल्ड टू बिकम हु दे आर, यू ऑल नो दैट। हम खेल रहे थे, मैंने उसको पूछा कि आपको नहीं लगता कि उसको दर्द हो रहा होगा? उसने कहा जानवर को दर्द नहीं होता। और उसके बाद फिर एक बच्चे ने ऊपर से कहा कि कुत्ते को मारना सवाब है, जन्नत मिलेगी। इट हर्ट मी सो बैड, बिकॉज ये आइडियोलॉजीज़ का बच्चों तक पहुंचना, इस किस्म की आइडियोलॉजीज़ का, ये क्या प्रोड्यूस करेगी? यही बच्चे बड़े होके हस्बैंड बनेंगे और फादर्स बनेंगे। And it was very painful for me. I have kept that statement of that child as my guiding light. Okay, we need to talk about these things to children because it starts with animal cruelty, and then it can end I don't know where. I mean, there's no limit to abuse. It's 21st century में जो कि innovative era है, इसमें हर कोई innovations लेकर आ रहा है, तो एक abuser भी तो innovative होता जा रहा है, नए नए तरीके अब्यूज़ के ईजाद हो रहे हैं, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड, ही और शी। सो या, एंड देन द होल आइडिया ऑफ गिविंग नाइफ्स टू द चिल्ड्रन ऑन बकरा ईद, कि चलें भैया आप काटें। मैंने तो ये केसेस, बकरा ईद आती है और 1 महीना पहले से हमारी स्कूल में कैंपेन्स शुरू हो जाती हैं कि बच्चों को आपने, किस उम्र के बच्चों को आपने दिखाना है और किस उम्र के बच्चों को नहीं दिखाना है। ये बहुत एक एडल्ट कॉन्सेप्ट है कुर्बानी का, और उसमें कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजीज़ पे, कि आप उसको काटें भी, फिर आप उसका रिमोट्स भी ना रखें, क्योंकि वो बकरा जो है या वो गाय जो है वो जन्नत जाती है। और उसके फ़ौरन बाद हमारी प्री स्कूल के अंदर वो एक्ट आउट करते हैं बच्चे। वी हैव टेकन वीडियोज़ ऑफ दैट। बकरा ईद के फ़ौरन बाद बच्चे स्कूल में आते हैं, पेंसिल उठाते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है चलो लेट जाओ, मैं तुम्हें काट रहा हूँ, और फिर उसको कहता है रोना नहीं, तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम सीधा जन्नत में जाओगे। So is there any filter? Is there any age appropriate information that we can talk about? And we should bring it to the schools. So thanks to my friends sitting there, going to schools, doing the health programs there. I'm sure that you must be giving a lot of awareness. Your writings are so beautiful. And I don't miss out on any piece that you write out there. So I'm really thankful to you. So thank you so much for letting me speak so much. I had no intention of taking your mic for so long, but thank you, and I'm so honored to be here. Keep doing the good work. Thank you so much.